Yeah, hi everyone. Good morning. और गुड मॉर्निंग सभी को। I think last Sunday we heard a message on hope, और पिछले रविवार हमने आशा के ऊपर उस वचन को सुना and I said hope and faith are connected. और मैंने आपको यह बताया था कि आशा और अपेक्षा एक साथ जुड़े हुए हैं, विश्वास एक साथ जुड़े हुए हैं। When I spoke on Hebrews 11 verse 1, now faith is the substance of things hoped for, the evidence we do not see. और जिस तरीके से मैंने इब्रानियों की किताब से बताया था, आपका जो आशा होता है वो उन चीजों के बारे में होता है, विश्वास होता है जिन चीजों को अभी तक आपने देखा नहीं है। Today I'm going to be speaking about a woman who pleased God with her faith. With her faith. और आज हम देखने वाले एक स्त्री का विश्वास जिससे प्रवेश में से उससे प्रसन्न होते हैं। Her name was Rahab. और उनका नाम था रेहाब। I think many of you would have heard of her. और हो सकता है आप में से बहुतों ने उसका नाम सुना हो। My husband said not all of them, but so you have to tell the story. और इसलिए आपको मैंने ये नहीं था कि सभी ने, इसलिए मैं जो आपको कहानी बताऊंगी। So I'm going to tell you the story of Rahab. और आज आपको रहब की कहानी बताएंगे। And we're going to understand how pivotal her role was in bringing Israel into the promised land. और हम देखेंगे कितनी अहम भूमिका उसकी थी इजराइल को लेकर आने के लिए उस प्रतिज्ञा की भूमि में। But before that, I'll just give you a little background, which I think most of you definitely know. और मैं आपको थोड़ा पीछे वाली की बात बताती हूँ इससे पहले कि हम आगे बढ़े। That Moses was supposed to bring them into the promised land. और मूसा जो था वो इजराइल को प्रतिज्ञा की भूमि में लेकर आने वाला था। But and he sent 12 spies to spy out the land. और उसने 12 जासूस वहां भेजे थे वहां पे जासूसी करने। And 10 of those spies were so frightened that they said to Moses, there are giants in the land, we cannot go, it is impossible. और वो जो 10 जासूस थे उन्होंने ये कहा कि वहां पर दानव राक्षस रहते हैं, वहां पर हम नहीं जा सकते। But two of them, Joshua and Caleb, said, no, they are like grasshoppers, we can defeat them. और यहोशू और कलेब ने ये कहा, अरे वो तो टिड्डो के जैसे दिखते हैं, हम उनको मसल देंगे। But the Israelites, they stoned Joshua and Caleb. वो इजरायलियों ने क्या किया, उन्होंने यहोशू और कालेब के ऊपर पथराव किया। And God was angry with that generation. और परमेश्वर उस पीढ़ी के साथ नाखुश थे और गुस्सा हो गए। He told Moses, I'm going to let them all die in the wilderness. I'm not going to take them into the promised land. और परमेश्वर ने मूसा से कहा कि मैं इन सभी को रेगिस्तान में मरने के लिए छोड़ दूंगा और इन लोगों को प्रतिज्ञा की उस भूमि में नहीं लेकर जाऊंगा। The next generation was going it, and only Caleb and Joshua with them. Not even you, Moses, are going to enter the promised land. और आगे आने वाली पीढ़ी यहोशू और कलेब के साथ उस प्रतिज्ञा की जमीन, उस भूमि पर पैर रखने वाली थी, और परमेश्वर ने मूसा को भी वहां पर जाने से रोक लिया, नहीं जाने दिया परमेश्वर ने। I feel so sad for Moses, you know. और मूसा के लिए बड़ा खराब लगता है, हमें बुरा लगता है। Because of the people he was leading, he couldn't go. और उन लोगों की वजह से मूसा नहीं जा पाया। Now Moses is dead. अब मूसा मर गया। And Joshua has taken over. और अभी पूरी जो कमान है वो यहोशू ने ले ली। So now Joshua sends only 2 spies. और यहोशू जो जाता है वो 2 जासूसों को भेजता है। Doesn't send 12, he sends 2. और ये नहीं कहता है उन्होंने 12 को भेजा, वो ये कहता है सिर्फ 2। And we'll find the story in the book of Joshua chapter 2. और इसकी कहानी को हम देखते हैं यहोशू की किताब उसका दूसरा अध्याय। And we will see in Joshua 2 verse 2, 2 spies are sent into Jericho. और यरीहो में 2 जासूसों को भेजा जाता है। And 2 spies are sent into Jericho, and they come to the house of Rahab, who is a harlot. और रहब के वो घर में आते हैं। This is 2 verse 2. Sorry, 2 verse 2. 1 is there. 1, 2, 3. Joshua 2 verse 1, 2, 3. Just see, it's written over there. Anyway, so then they come to the house of Rahab, who is a prostitute. तो रहब के वो घर में जाते हैं जो कि एक वैश्या थी। 2 strange men coming into a prostitute's house, they can go unnoticed because, you know, men seek pleasure. और 2 आदमी पराये मर्द
एक वैश्या के घर पे जाता है और लोग तो देखेंगे कि हाँ यहाँ पर गए, मर्दों को सिर्फ क्या चाहिए रहता है, आराम चाहिए रहता है और उनको जो है वो मजा चाहिए रहता है, इसलिए वो वहां पर जाते हैं। But actually, they were identified as Israelite spies. पर उनकी इस तरीके से पहचान होती है कि वो इजराइल के द्वारा They, भेजे गए जासूस हैं। they didn't go unnoticed as strangers. और वो जो है जो गैर के जैसे नहीं गए। And the king of Jericho comes to hear it. और यरीहो के राजा को इस बारे में पता चलता है And he sends his men to Rahab's house to find out. और राहब के घर पे वो अपने सैनिकों को भेजता है इन लोगों का पता कराने। And she tells the soldiers और वो सिपाहियों से कहती है that yes, they came, but I don't know where they were from. और वो कहती है कि हाँ ये लोग तो आए थे पर मुझे नहीं पता कहाँ से आए थे। And when it was dark, they slipped out of the gate and they've gone. If you run after them, you might overtake them and find them. और बोलता है जैसे अंधेरा हुआ वो यहाँ से निकल गए और हो सकता है अगर तुम उनका पीछा करो उनको पकड़ सकते हो। She tells her king's soldiers, और her king, the king of Jericho soldiers. और ये जो है वो बात यरीहो के राजा को बताती है। She tells them a lie वो उनको झूठ कहती है because she has hidden them on her rooftop under the stalks of flax. और ऊपर जो है झाड़ियों में उसने उनको छुपा के रखा है। And she's hidden them there, thinking that, maybe if I save them, because she's heard about the God of Israel, maybe something will happen to me if I do this. और वो ये सोचती है अरे ये तो इजराइल से अगर मैं इनको बचाऊंगी तो कुछ तो मेरा अच्छा होगा। And she thinks that, that this God will give her a chance to have her life changed, maybe. और वो ये सोचती है कि ये परमेश्वर कुछ तो मुझे एक मौका देंगे ताकि मेरी जिंदगी बदल जाए। And she bargains also with these spies for the life of her family. और वो मांगती है कि दया मांगती है उसके परिवार के जीवन के लिए। Because she knows the whole Israelite army is coming into Jericho. क्योंकि उसको पता है कि इजरायली सेना आ रही यरीहो में। And she, her family gets saved when Israelites invade Jericho. Her family gets saved and she gets a new life. और जब इजरायली सेना वहां पर धावा बोलती है तो वो और उसका परिवार बच जाता है और उनकी एक नई जिंदगी की शुरुआत होती है। But most amazing of Rahab's life, और सबसे जरूरी राहब के जीवन में, besides coming out from a life of shame, she became a wife and a mother, and from her line came the descendant of King David. और उसकी ऐसी जिंदगी थी जहां पर शर्म और दुख से भरी हुई जिंदगी में से उसका जीवन बदल जाता है और उसकी वजह से दाऊद की वंशावली वहां से आती है। And we know who was the descendant of King David. Was Jesus Christ, the King of Kings, who was the savior of mankind. और दाऊद के वंशज में कौन आता है? वो है प्रभु यीशु मसीह जो जगत के उद्धार करता है। What an amazing story. और कितनी अद्भुत कहानी है। I've just told it to you in very briefly, but read chapter 2 of Joshua, okay? We will be referring it to this morning. बड़ी गहराई से आपको बताएं तो और जानने के लिए आप यहोशू के किताब पढ़िए 2 अध्याय। So how did Rahab get this faith? और राहब के पास ऐसा विश्वास आया कैसे? Why is she known as a woman of faith who is in Hebrews 11 in the hall of faith? Why is her name there? और इसका नाम कैसे इब्रानियों 11 की अध्याय में कैसे दर्ज हुआ? Romans 10:17 says, रोमियो 10:17 faith cometh by hearing and hearing the word of God. विश्वास आता है सुनने से, सुनना परमेश्वर के वचन से। Hearing the God is so essential for our growth. और परमेश्वर का वचन हमारी बढ़ोतरी के लिए सुनना बहुत जरूरी है। Hearing the word of God cultivates our faith. और अंदर से जब हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, हमारा विश्वास जो अंदर से बनता है। But how did she hear it? और राहब ने कैसे सुना? She heard stories. उसने कहानियों को सुना। She heard stories and reports, possibly of the men she served being a prostitute. और उसने सुना ऐसे कहानियों में, उसके कथाओं में सुना उन पुरुषों के बारे में। Story after story, report after report from every traveler and every visitor that crossed through Jericho. और कहानियों की बात कहानी और लोगों से सुना उसने। And what did she hear? और क्या सुना? She heard उसने ये सुना that the Israelites were ex-slaves in Egypt.
कि इजरायली जो लोग थे वो गुलाम थे। She heard how the 10 plagues came and hit Egypt. और उसने ये देखा कि 10 महामारी किस तरीके से She heard, मिस्र देश पर आई। she heard that, she heard how the Red Sea parted. उसने ये सुना किस तरीके से लाल समुंदर दो हिस्से में हो गया। She also possibly heard how the firstborn of Egypt were killed and how the Israelite firstborns were saved. और उसने ये भी सुना कि मिस्र देश के जो पहलौठे बच्चे थे वो कैसे मारे गए और सिर्फ इजराइल के जो बच्चे थे वो कैसे बच गए। She also heard of how the Israelites defeated the great king of the Amorites, Og and Sihon. और कैसे उन्होंने जो है भारी राजा जो थे कैसे अमोरी के राजा को किस तरीके से हरा, इस बारे में सुना। And when she heard these things in verse 9, 10 and 11, I forget, just put all those 3 verses together of Joshua 2. और जैसे 9, 10, 11 में उन वचनों को देखा, She says, we had no courage in any of us. There was no courage in us. और वो ये कहते हैं हमारे अंदर किसी भी तरीके का हिम्मत नहीं रहा। Terror filled us. हमारे अंदर जो एक डर सा बैठ गया, Our hearts melted. हमारा दिल जो है वो गलने लग गए We became faint-hearted और उनका दिल जो था एकदम कमजोर हो when चुका we था। heard your stories. क्योंकि जब हमने आपकी कहानियों को सुना, So we see that the starting point of faith is hearing the word of who God is. और विश्वास का शुरुआती दौर कब होता है? जब हम परमेश्वर के बारे में सुनते हैं। Rahab said, राहब ने ये कहा, when she said we heard, but then she says in verse 9, पहले वो कहती हमने सुना, फिर वो 9वें वचन में ये कहती है, I know the Lord has given you the land. और वो ये कहता है मैं इस बात को जानती हूं कि प्रभु ने तुम्हें ये देश दिया है। And she says, and I know the Lord, that your God is of heaven above and of the earth beneath. और मैं जानती हूं कि तुम्हारा परमेश्वर स्वर्ग के ऊपर है और स्वर्ग के नीचे भी। And she heard and she knew that he was a powerful God. और उसने सुना था कि ये परमेश्वर शक्तिशाली परमेश्वर है, Because he fought, she remembered the battles they won. क्योंकि उसको याद है उन कहानियों के बारे में And she जिनमें knew उन्होंने जंग Jericho जीती। didn't have a chance. और वो जानती थी कि यरीहो के पास किसी भी तरीके का मौका She नहीं है। just knew it उसको सिर्फ ये बात पता थी because of what she heard क्योंकि जो कुछ उसने सुना about the God of Israel. इजराइल के परमेश्वर के बारे में। And Rahab makes a very big confession in this verse. और यहाँ पर वो बहुत बड़ी कबूली करती है, Which is actually so pivotal for the spies to hear because they're going to tell Joshua about it. और ये जो था जब जासूसों ने सुना वो हजम ही नहीं हो रहा था उन्हें ये बातें। I know the Lord has given you the land. जब वो ये कहती है कि मैं जानती हूं कि परमेश्वर ने ये जमीन तुम्हें दी है। They are on her rooftop. उसकी छत पे She's talking to them on her rooftop. और वहां पर उनको जो छुपा है छत पे। The walls of Jericho was one of the most fortified cities of Canaan. और जब केना के जो नगर में जो यरीहो की जो दीवार थी सबसे विशाल और महाकाय दीवार थी। And she is making a prophetic statement about that the Lord has already given you the land. She is declaring something prophetic to the Israelites. और वो जो इजरायली थे उनके लिए एकदम भविष्यवाणी के तौर पे वो ये कह रही थी कि मैं जानती हूं कि ये जमीन ये देश परमेश्वर ने तुमको दिया है। So in verse 9 she says, I know. 9वें वचन में ये कहती है कि मैं जानती हूं। But in verse 10 10वें वचन में she says, we have heard. वो ये कहता है क्योंकि हमने सुना। So everybody heard. क्योंकि और इसका मतलब ये है कि सभी ने सुना। But did they know क्या उनको पता था about this God? ये परमेश्वर के बारे में? Not like the way she did. उस तरीके से नहीं जिस तरीके से राहब जानती थी। She knew. उससे पता था। And she knew nothing was impossible with this God. और वो जानती थी कि परमेश्वर से जो है कोई भी चीज असंभव नहीं है। She knew the God of Israel, the Yahweh, was the only true and living God. क्योंकि वो जानती थी कि इजराइल का परमेश्वर यावे वो सच्चा परमेश्वर है। Faith comes by hearing and hearing the word of God. She heard manna came from heaven every day. She heard they were fed by meat in the desert. She heard water came from a rock. She heard it. और जिस तरीके से वचन कहता है वचन
विश्वास आता है सुनने से, सुनना परमेश्वर के वचन से। उसने सुना था कि स्वर्ग में से मन्ना बरसता था, उसने सुना था कि पत्थर में से पानी निकलता था, उसने सुना था कि लाल समुद्र दो हिस्से में हो गया था। Today we know आज हम जानते हैं, we all have difficult situations in our lives. हम सभी जानते हैं कि हमारे जीवन में कुछ ना कुछ परिस्थिति है। Are you facing something so difficult क्या आपके जीवन में कुछ मुश्किलों का सामना आप कर रहे where हैं you कभी? see, you know, and everybody around you is telling you it cannot happen? और आप जानते होंगे सारे लोगों को जो ये कह रहे हैं कि नहीं, तेरी जिंदगी में ये सारी चीजें कुछ भी ठीक नहीं होंगी, They're telling you, be careful, you'll lose it. और वो ये कहते हैं कि सावधान रहना, तुम मुझसे खो सकते हो। I want to tell you, the word of God says, with man it is impossible, but with God all things are possible. और मनुष्य के लिए चीजें असंभव है, पर परमेश्वर के लिए सारी चीजें मुमकिन और संभव है। Our God is bigger than our difficulties. हमारा परमेश्वर हमारी कठिनाइयों से बड़ा है। If we see our difficulties big, then we'll see a small God. अगर हम अपनी मुश्किलों को बड़ा देखते हैं तो हम अपने परमेश्वर को छोटा देख रहे हैं। But if we see a big God, our problems will shrink, they'll become small. अगर हम बड़े परमेश्वर को देख रहे हैं तो हमारी जो कठिनाइयां हैं, जो मुश्किल है, वो हमें छोटी दिखेंगी। You see, nothing is too difficult for him. और देखिए, परमेश्वर के लिए कोई भी बात असंभव नहीं है। I know someone said to me, you know, Des, you will lose this job because the supervisor was tough with me. And they said, be careful, you'll lose this job of yours. और आंटी बताती है कि उनको किसी ने कहा कि जैसे आप अपनी नौकरी को खो सकती है, कि ये जो सुपरवाइजर बहुत कड़क है और बड़ी सख्ती रखता है करके, और ये जो है बड़ा बहुत 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 बुरा है करके, इस अगर ये आपकी नौकरी खा सकता है। So me and my supervisor, I could lose the job. और आंटी और उनके जो सुपरवाइजर थे वो नौकरी खो सकते थे। But if I put God in the equation, पर मेरे जहन में परमेश्वर थे। if I put God and Des and supervisor, अगर मैं परमेश्वर को, अपने आप को, सुपरवाइजर को रखूं, she resigned her job voluntary in the 1 year that I was there, and I went on to work for 10 years after that. और उन्होंने जो एकदम जो शक्ति रखते थे, उन्होंने अपनी नौकरी को छोड़ा और फिर आंटी ने अपना आगे का जो इस नौकरी को और 10 साल तक किया। So how you look and how you believe depends on you, okay? और कैसे आप देखते हैं, कैसे आप विश्वास करते हैं, ये किसी और बात पे निर्भर नहीं, बल्कि आपके ऊपर है। What do you know about God? आप क्या जानते हैं परमेश्वर के बारे में? Alex says, you know, I ask everybody, are you reading the Bible? I mean, और जिस तरीके you से read that Bible, I'm telling you, you are going to get faith that will move mountains. और जिस तरीके से भाई एलेक्स ने शुरुआत में कहा था कि आंटी पूछती है कि क्या आप अपने वचन को पढ़ते हो? आपको अपने वचन को पढ़ना है। You discover how big he is. आप खुद खोज के निकालते हो कि परमेश्वर कितने बड़े हैं। Ask him even right now. Just close your eyes and say, Jesus, may I know you more. अपनी आंखों को इस समय बंद करें और परमेश्वर से अभी कहे कि परमेश्वर, मैं आपको और जानना चाहता हूं। Rahab knew her God only from the reports and the stories that she heard. राहब ने परमेश्वर के बारे में जाना उन लोगों के जरिए, कहानियों के जरिए, और जो कुछ उसने सुना। You hold the Bible in your hand. You have his word in your hand. आप अपने बाइबल को अपने हाथ में लेकर चलते हैं। You have the आपका account वचन है। of what he has done for Israel and what he can do in your life today. आपके हाथ में पूरा हिसाब किताब है उसका, कि वो क्या कर सकता है और उसने क्या किया। And it's for your life. और ये आपकी जिंदगी के बारे में है। You know, he will show you which way to take. और वो आपको बताएगा कि कौन सा रास्ता आपको She लेना है। believed he was a true God. राहब विश्वास करती थी कि वो सच्चा परमेश्वर है। Faith was birthed in her heart. उसके दिल में विश्वास का जन्म हो चुका। And this is our story, isn't it? और ये हमारी कहानी है। We heard, we knew and believed and we confessed. हमने सुना, हमने जाना, हमने विश्वास किया और हमने अंगीकार किया। To make her this woman of faith, she had an accurate understanding of God and didn't doubt him. और इन सभी के लिए उसके पास परमेश्वर के लिए एक सटीक विश्वास था, जिसके ऊपर उसने जरा भी संदेह नहीं किया, शंका नहीं किया। And because of her faith, what did she do? और उसके विश्वास के बल पे उसने क्या किया? She took risks for him. उसने उसके लिए जोखिम उठाया। What risk did she take? उसने क्या जोखिम उठाया? She hid the spies. उसने जो जासूस आए थे उनको छुपा के रखा।
She lied to the king's men. और जो राजा के जो भेजे गए सैनिक थे उनसे झूठ बोला। She sent them on some pursuit when they were hiding on her roof. She sent the soldiers here. उनको अपनी मनगढ़ंत कहानी बता के उनको वहां पर भेज दिया और ये जो जासूस थे उनको छुपा के रखा। She took a risk, their lives for her life. उसने उन दोनों की जिंदगी बचाने के लिए अपनी जिंदगी का दाव लगा के वहां पर You जोखिम know, उठाया। she could have been killed. आपको पता है ये करने के लिए Why was उसको she- मार भी डाल सकते थे। Why was she willing to lay down her life for two strangers? और दो अजनबियों के लिए वो अपनी जान को जोखिम में क्यों डाले? She had never met these spies before. और ये जो जासूस आए थे उनसे कभी मुलाकात नहीं हुई थी उसकी। She was willing to lay down her life and give her life because of the God that they believed in. और ये अपनी जिंदगी को जोखिम में इसलिए डाल पाई क्योंकि उसने विश्वास किया था वो जो दो जासूस आए थे उनके परमेश्वर के ऊपर। Daniel 11 verse 32 says, they who know their God shall do great exploits. और जिसे दानियल की किताब में लिखा है, जो कोई अपने परमेश्वर को जानता है वो बड़े कार्य करेगा। What is the meaning of knowing? और जानने का मतलब क्या होता है? It means about having a deep relationship with God. इसका मतलब ये है कि आपका और परमेश्वर का एक गहरा रिश्ता, And He empowers us. और वो अंदर से आपको ताकत देते हैं। He empowers us as individuals to, do amazing things and great things for Him. और हम में से हर एक के अंदर वो ताकत देते ताकि हम बड़े कार्यों को कर सकें। Rahab knew the God of Israel. और रेहब इज़राइल के परमेश्वर को बखूबी जानती थी। And that is why she was able to, look after the spies and not help her own king and country. और इसीलिए वो उन दो जासूसों को छुपा पाई और अपने राजा को वो नहीं बताई। She knew her country was doomed because of their idol worship. Their gods were small little deities. और वो जानती थी कि इनके राज्य की वजह से, इनकी मूर्ति पूजा की वजह से इसका राज्य चले जाने And वाला था। maybe, just maybe, because of the stories she heard, maybe he would do something for her. Maybe he would bring the obstacles out of her life. Maybe he would give her a new life because of what she heard. और जो कुछ उसने सुना उसने यही सोचा रहेगा कि हो सकता है कि ये परमेश्वर मेरी जिंदगी को बदल दे, हो सकता है कि मुझे एक नया जीवन बदल जाए, हो सकता है कि यही सच्चा परमेश्वर हो। उसने सोचा कि हो सकता है, इस बारे में सोचा। So she took a risk. तो इसीलिए उसने जोखिम उठाया। When we know God, जब हम परमेश्वर को जानते हैं, we too will be willing to lay down our lives for Him. हम भी तैयार हो जाते हैं अपनी जिंदगी को दांव पे लगाने के लिए। We will surrender our lives to Him. हम अपने जीवन को उसके सामने रख देंगे। How can we do this? हम कैसे करेंगे ये? It says in John 12:24, यूहन्ना 12:24, unless a grain of wheat falls to the ground and dies, then only can it bear fruit. और जब तक एक डाली मर के गिर ना जाए तब तक वो एक नए फल को उत्पन्न नहीं कर सकती। We have to die. हमें to मरना ourselves. पड़ेगा It is necessary for our growth. और ये हमारी बढ़ोतरी के लिए बहुत जरूरी है। To become new creations, the old has to go. और जो पुराना है उसे जाना ही होगा ताकि नया आ सके। You know, we like to say, I am like this and I am like that and I don't like this and I don't like that. That's the old you. और हमें ये कहना पसंद है, मुझे ये चीज पसंद, मुझे ये चीज नहीं पसंद है, मैं ऐसा था, मैं ऐसी हूं। हम सभी को जब पुरानी चीजें बहुत पसंद है, You have to die to that to become a new creation in God. आपको उन चीजों के लिए मरना होगा और परमेश्वर के लिए नई चीजों के लिए आपको वापस से जिंदा होना होगा। I want to tell you, आपको बताएंगे अभी, He has called us to sacrifice. हमें बुलाया गया है ताकि हम He's जो है called us कुर्बानी to दे be सकें। living sacrifices. और हमें देनी होगी, बलिदान देना होगा। And it is very hard and it is very tough. और ये जो है बहुत मुश्किल है और बहुत कठिन है, But with Him, पर परमेश्वर के साथ with Him in the equation, और उसके साथ जब हम मिलके करते हैं it can be done. वो किया जा सकता है। Rahab faced a physical death. और राहब जो था इसकी वजह से मर भी सकती थी। And those of us who know Jesus today, और हम में से जितने लोग आज प्रभु यीशु we मसीह need को to जानते know हैं, this. We need to know this, that some might die physical deaths for Him, because we've heard stories of a Graham Staines, we've heard stories of missionaries, we've heard stories of the apostles of Jesus and how they all
died for the sake of who he was. और हम जैसे जानते हैं कि आज जब हम प्रभु यीशु मसीह के बारे में सुन रहे हैं, आज परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के बारे में जान पा रहे हैं, वो ये क्यों हुआ? क्योंकि ग्राहम स्टेन्स को मारा गया। वो इसलिए हुआ क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के जो 12 चेले थे, उनके बलिदान की वजह से, और जितने लोग उन्होंने सुसमाचार के खातिर अपने जीवन को दिया, शहीद हुए। Even at this moment in life, there are thousands of Christians in our jails here in India. As I stand here, we thank God that we are here. But there are thousands of pastors and Christians in jails because they believe in Jesus. और जैसे हम यहाँ पर अभी खड़े, यहाँ पर बैठे, और इसी समय पे भारत के अंदर हजारों की तादाद में पासवान और सुसमाचार के जो प्रचार करने वाले लोग हैं, जेलों में पड़े हुए हैं। क्यों? क्योंकि सुसमाचार की वजह से। To keep the persecuted church of India in prayer, okay, everybody. और यहाँ पर जो है सताव करा जा रहा है। But we too today have to die to ourselves. और आज भी हमें खुद के लिए मरना होगा। And it's a different kind of dying. It's a different kind of dying. और ये अलग तरीका होता है मरने का। When we have to obey him. जब हम उसकी बात मानते हैं। Who would think obedience could be so difficult? और किसको लगा था कि बात मानना, आज्ञा पालन But करना इतना I मुश्किल tell होगा? you, when he speaks to you and you have to obey him, it's one of the most difficult things happening because you die inside. और जब परमेश्वर आपसे कुछ करने के लिए कहते हैं, तो उस बात पर चलना काफी मुश्किल होता है। वो एक तरीके से यही होता है कि आपको खुद को मारना पड़ता है उसकी बात मानने के लिए। Just obeying him. उसकी बात को मान लीजिए। Then there's forgiveness. वहां पर फिर क्षमा मिलती है, which he came for. जिसके लिए वो आया। To forgive us our sins. हमें अपने पाप पे माफी देने। So that we could forgive others like the way he has forgiven us. ताकि हम दूसरों को माफ कर पाए जिस तरीके से उसने हमें माफ किया। And we find it so difficult. और हमको इतना मुश्किल होता है। Matthew 6:14 and 15. मत्ती 6:14 और 15। I'm just going to put it up there. You read it, but you know, Jesus wants us to forgive like the way he forgives. And he says, if you don't, then my Father also will not forgive you. और वो इस बात से हमें कहते हैं कि वो चाहता है कि हम भी उसके से माफ करें जिसे उसने हमें माफ किया, क्योंकि वो ये कहता है अगर तुम दूसरों के अपराधों को माफ करते हो तो परमेश्वर पिता आपके भी अपराधों को माफ करता है। अगर You तुम can दूसरे के come to अपराधों church को, and you can sit here and you can do your duty, you think about God. But if you cannot forgive your brother or your sister like the way he forgives you, then you will not get his forgiveness. It's written. It's just written there. और जैसे यहाँ पर लिखा है, तुम माफ करोगे तुमको भी माफी मिलेगी, और अगर तुम किसी अपने भाई को, अपनी बहन को अगर आप माफ नहीं करते तो आपको भी परमेश्वर माफ नहीं करेंगे। Do not let us abuse grace. कि हम अनुग्रह का शोषण ना करें। We have to die to our pride, our ego, our arrogance, our stubborn hearts. We have to die to it. और इन सारी बातों के लिए, हमारे गुस्से के लिए, हमारे घमंड के लिए, हमारी जलन के लिए हमको मरना होगा। Who do we think we are? हम क्या सोचते कि हम You कौन know, हैं? God used to say that to me as I was growing up. Who do you think you are, Des? और जैसे आंटी बता रही कि जिस तरीके से वो बढ़ रहे थे, परमेश्वर ने उनसे कहा तुम्हें क्या लगता है तुम कौन हो? You know, I was saying, oh, I'm Desiree Collins. और आंटी बोलती है मैं तो डेज़िरे कॉलिंस हूँ। And this is a true story. I was once at a party with a lot of people there, a lot of business people from South Mumbai, and there was a foreigner in our midst where we were asked to introduce ourselves, and I said to him when it came to my turn, you know, that I am from the president. और बहुत ऐसी जो एक शानदार पार्टी हो रही थी जहां पर जो बहुत सारे जो साउथ बॉम्बे के बड़े बड़े जो दिग्गज बिजनेसमैन वहां पर आए हुए थे, और उनको सबको जो अपना अपना इंट्रोडक्शन, अपना परिचय देना था। You work for the, I said, I work for the president. He says, you work for the president. और वो बताते हैं कि वो प्रेसिडेंट के लिए काम करती हैं। Thought I was working for the president of India. He was a foreigner. He didn't know that there was a hotel by the name of President South Mumbai. But you know, who do you think you are, Des? और जो फिरंगी था उसको ये लगा कि वो राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति के लिए काम करती है। उसको ये नहीं पता था कि प्रेसिडेंट नाम का एक होटल भी है। He thought he was, and he says, you know, my gosh, I'm sitting amongst very important people over here today.
and you work for the president. And you know, one small little girl, like, you know, I was. और उस गोरे को ये लगा कि बाप रे, यहाँ पर तो बड़े बड़े लोग आए हैं और ये जो राष्ट्रपति के लिए काम कर रही है. You know, the savior of the world became nothing. जगत का उद्धार करता अपने आप को एकदम नम्र कर दिया. And he is, you know, desires us to embrace his ways और वो चाहता है कि हम उसके तरीकों को गले लगाएं so that we can glorify him. ताकि हम उसके नाम को महिमा दे पाए. Not because I'm Desiree Collins who works for the president. इसलिए नहीं कि आप डेज़िरे कॉलिंस और प्रेसिडेंट होटल में आप काम करते हैं. He comes to us वो हमारे पास आता है and we discover him और हम उसको और जानते हैं. as we take steps of risk and faith as we walk with him. और जैसे हम परमेश्वर के साथ चलते हैं और जोखिम भरे कदम उठाते हैं. You know, Rahab was protected और रेहाब का बचाव किया गया, सुरक्षित करा गया when she saved the spies. जब उसने उन जासूसों को बचाया. And she was able to negotiate with the spies for the saving of her family. और इसके साथ वो इस बात पर आई जहां पर उन्होंने एक तरीके का बात किया जिससे So, उसका so परिवार she बच गया. does a very big ask. A big ask. और वो एक बड़ी मांग करती है. She tells them, you know, you have to, if I'm doing this kind deed for you, you also have to do a kind deed for me. और वो ये कह रही, अगर मैं तुम्हारे साथ भला काम कर रही हूं तो तुम भी मेरे साथ भला काम करो. And you know, I think it was her profession of haggling with her clients about money. She was able to haggle with these spies, not realizing what she was doing and what a big thing she was asking for. और जैसे जैसे वो अपने क्लाइंटों के साथ एक तरीके का जो व्यवसाय करती थी और उसको ये लगा था कि यहाँ पर भी मैं करूंगी करके. And see what she says in verses 13 and 14. You know, she says, you know, you have to give me 13. Let me see if 13, verses 13, or Joshua 2, verse 13. And all that so spare my mother, my father, my brothers and sisters, and all that they have, and deliver our lives from death. This is the big ask she's asking. और वो एक बड़ी मांग करती है और वो ये कहती है कि तुम मुझे वचन दो कि तुम मेरे पिता, माता, मेरे भाइयों और बहनों तथा उन सब के परिवारों को जीवित रहने दोगे और मृत्यु से हमारे प्राणों को बचाओगे. And see what they say in verse 14 to this harlot prostitute. Verse 14. Our lives for yours. No, I just want to read that first part. और यहाँ पर ये जो व्यक्ति जो वैश्या थी उसको ये लोग ये कहते हैं, गुप्तचर उससे ये कहते हैं, हमारे प्राण के लिए हाजिर है. And in verse 18, 18वें वचन में, now she is letting them go out of her window, okay? अब ये उनको अपनी खिड़की से जाने को कह रही है. She is letting them escape. और वहां पर उनको ना भाग निकलने को And they मौका दे रही say है. she put a long cord or a rope, a red rope, to let them down. एक लाल कलर की रस्सी वो लटका देती जिससे वहां से वो निकल जाए. And while they are going down, और जैसे वो नीचे जा रहे हैं, this is all that they are saying to her. और ये वो कह रही उनसे. And we know the story after this. और इसके बाद की कहानी हमें पता है. They take her report to Joshua. Joshua invades Jericho. The walls come tumbling down. We know the story, right? How the walls fell down. और इसके बाद की कहानी हम जानते हैं कि ये जो जासूस थे वो यहोशू के पास जाके सारी बातों को बताते हैं और यहोशू पूरी सेना के साथ वहां पर यरीहो पर टूट पड़ता है. I just like us to look at Joshua 6 verse 22 and 23 and see what it says. When Joshua enters Jericho and wins this battle, he tells the two spies, go into the harlot's house and from there bring out the woman and all she has as you swore to her. और उसके बाद उस वचन में ये कहता है, यहोशू ने उस देश को भेद लेने के बाद, भेद यानी कि जीत लेने के बाद, वो दोनों गुप्तचरों से कहता है, वैश्या के घर जाओ और अपनी शपथ के अनुसार तथा उसके सारे संबंधियों को घर से बाहर निकाल लाओ. All the walls of Jericho have come tumbling down. Rahab has her house in the wall of Jericho, and he says, go to her house. Is the house still standing? Is a house still standing? That means, right? और
और जिस तरीके से हमने देखा कि यरीहो की दीवार पूरी गिर जाती है, पर यहाँ पर हम देखते हैं यहोशू क्या कह रहा है कि जाओ और राहब को लेकर आओ, उसके परिवारों को, उसके सभी को लेकर आओ। तो राहब का घर जो था उस दीवार में था, तो क्या You उसका know, घर बचा? हाँ, उसका घर there's- बचा, उसका घर को कुछ नहीं हुआ। As I was reading many commentaries about Rahab, I found a picture of one part of the wall of Jericho that did not fall, and archaeologists and historians say it's the house where Rahab was. Isn't that amazing? Can you put that picture up? Yeah. और जिस तरीके से इसके ऊपर और मैं खोजबीन कर रही थी, तो जब मैंने देखा कि ये सारी दीवारें गिर गई, पर जिसे शोधकर्ता गए, उन्होंने देखा कि अभी भी एक दीवार में एक कमरा अभी भी खड़ा है, और उन्होंने बताया कि ये जो कमरा है वो राहब का है, जो गिरा नहीं। And you know that red cord is a significant thing. और वो जो लाल रस्सी है उसकी भी एक अहमता है, It is like a bloodline of hope. और वो एक तरीके की एक ब्लड लाइन है, यानी कि एक तरीके खून की सूची है। The blood of Jesus that was shed for the saving of our souls today was the bloodline that saved Rahab. And we know the blood of the Lamb on the doorpost of Israel saved them from the angel of death. So, the blood of Jesus is saving us still today. Isn't it amazing? वो एक तरीके का चिन्ह था, जिस तरीके से प्रभु यीशु मसीह का खून जो हमारे लिए बहाया गया, जिसने हमें बचाया, वो मेमने का खून जिसने इजरायलियों को बचाया, क्योंकि मौत का संहार करने वाला दूध जब मिस्र देश के ऊपर मंडरा रहा था, सिर्फ उन्हीं के घर बचे, और ये उसका एक चिन्ह है। And Joshua gives her a place amongst the Israelite people. और यहोशू राहब को जगह देते हैं इजरायलियों के बीच में। Her risk paid off. Her risk, the risk she took. और उसने जो जोखिम उठाया उसको उसका फल मिला। And I want to conclude now और इसके साथ मैं खत्म करूंगी with her lineage फिर उसकी जो वंशावली आई, and the transforming power of Rahab. और जिस तरह के राहब के बदलने वाली जो She is सामर्थ mentioned थी, 3 times in the New Testament. और नए करार में 3 बार उसका जिक्र है। In Hebrews 11:31, it says, Rahab, by faith, Rahab did not perish with those who did not believe when she received the spies with peace. और इब्रानी की किताब 11 में जिससे से 31वें वचन में, विश्वास के कारण राहब नामक वेश्या अविश्वासियों के साथ नष्ट नहीं हुई। She is in the hall of faith. वो विश्वास के जो एकदम We चरम पर है, उनके we साथ have है। heard of the Hall of Fame where all these Hollywood heroines are there, but Rahab is in the Hall of Faith. From a harlot, she became a heroine. जैसे हम देखते हैं कि बॉलीवुड और जा रहे हैं, और हॉलीवुड में जिस तरीके से बताया जाता है, हॉल ऑफ फेम में उनका नाम आता है, पर This यहाँ पर lady, yes, this lady who walked the streets of Jericho, in the dark, began to walk in the light. और ये जो स्त्री जो यरीहो के नगरों के जो अंधेर में चलती थी, आज वो उजाले में चलती है। She's mentioned in James 2:25, where she was justified by what she did. और याकूब 2:25 में उसका जिक्र है, जब जिसकी वजह से उसकी धार्मिकता हुई। What did she do? उसने क्या किया? She received the spies or the messengers and sent them out another way. और उसी प्रकार वैश्या ने, राहब ने अपने कर्मों से धार्मिक ठहराई गई, क्योंकि उसने अपने घर में दूतों का स्वागत किया और उन्हें दूसरे रास्ते विदा किया। Today when God calls you to give a glass of water to a stranger, give it. अगर परमेश्वर आज आपसे कहता है किसी अजनबी को एक गिलास पानी पिलाओ, तो पिलाओ। Smile and tell somebody God loves them. मुस्कुराओ और उनसे कहो कि परमेश्वर उनसे प्यार करते हैं। Rahab demonstrated her faith with an act. और राहब ने अपने विश्वास को दिखाया उसके कर्मों के से। But the most marvelous thing for me is she's in the lineage of Jesus. और सबसे अहम बात यह है कि वो राहब जो कि एक वेश्या थी, वो प्रभु यीशु मसीह के वंशावली में है। Matthew 1:5. मत्ती 1:5 and 6. And Salmon begot Boaz by Rahab, and Boaz begot Obed by Ruth. Rahab and Ruth were both Gentile women. One was a prostitute, one was a Moabitess widow, and they got Jesse, and Jesse begot David,
King David, one of the greatest kings of Israel. And we know that the Messiah comes from King David's lineage. और सलमोन से राहाब द्वारा बोएज उत्पन्न हुआ, बोएज से रूत द्वारा ओबेद उत्पन्न हुआ, ओबेद से यिशै उत्पन्न हुआ। हम जैसे देखते हैं कि राहाब जो थे कि वैश्य थे, बाकी का जो लोग थे वो जो है अन्य जाति के लोग थे। और फिर जैसे वो आगे होता है कि यिशै से राजा दाऊद उत्पन्न हुआ, और फिर हम देखते हैं राजा दाऊद जो था इजराइल का सबसे शक्तिशाली और महान राजा था जिसको परमेश्वर ने बनाया था, और उसी की वंशावली से प्रभु यीशु मसीह आते हैं। Rahab is in the pedigree of Jesus. The transforming power of God put her from a prostitute to a princess. Did she ever think her ancestors would be kings? क्या वो कभी इसने ऐसा भी सोचा होगा कि उसकी जो पीढ़ी है, उसकी पीढ़ी में से बड़े राजा निकलेंगे? क्या उसके पूर्वजों ने कभी ऐसा सोचा होगा? Through her life, उसके जीवन की वजह से she was used उसका इस्तेमाल हुआ to bring in the Jesus. यीशु मसीह को लेकर आने में। She brought forth the savior of the world. उसने जगत के उद्धारकर्ता को लेकर आया। I find that so amazing और ये कितना अद्भुत है that a prostitute is there in this lineage of our savior. कि एक वैश्य की वंशावली में हमारे उद्धारकर्ता का What came जन्म है। out of her life? उसके जीवन में से क्या निकला? Kings came out of her life. राजा उसके जीवन से निकले। What comes out of your life? आपके जीवन में से क्या निकलता You है? know who we are. आपको पता है हम कौन है? We come out from Jesus. हम यीशु मसीह से निकले हैं। You know, Jesus came out of her lineage. We come out of his lineage. और प्रभु यीशु मसीह राहब की वंशावली में से निकले, और हम प्रभु यीशु मसीह की वंशावली से। And what do we need to do? Just live life for him, really. और हमें करना क्या है? उनके लिए एक महान जीवन जीना है। Bring glory to him. उसको महिमा लेकर आनी है। Share his love. उसके प्यार को बांटना है। Obey him. उसकी बात को मानना Share है। the gospel. वचन को बांटना है। Keep doing what Jesus wants you to do. उन चीजों को करें जो प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं आप करें। Forgive, be patient, be loving, be gentle. Have the fruits of the Spirit in you. और आत्मा के फलों को आप अपने अंदर रखें कि आप जो है नरमी बरतें लोगों के साथ में, दया रखें, करुणा दें। The wonder of our God, really. How marvelous he is. और कितना महान अद्भुत परमेश्वर है। He took a misfit, an outcast of society, and made her a princess. और ऐसी स्त्री को उसने उठाया जिसको समाज निकाल देता है, दुत्कार देता है, ठुकरा देता है, और उसी स्त्री को वो राजकुमारी बनाता है। What can he do with your and my lives? अगर वो परमेश्वर उनके साथ ऐसा कर सकता है, Only he can हमारे make a साथ क्या miracle करेगा? of a life like as broken as Rahab. क्या हमारा जीवन उस तरीके से टूटा हुआ है राहब के जैसे? You know, it changed the course of her family tree. और जो उसकी वंशावली थी उसका पूरा जो है रास्ता ही बदल दिया। Today, if your life is messed up, अगर आपका जीवन एक तरीके से गड़बड़ी में है, maybe like Rahab or worse, और राहब के जैसा हो सकती है, या फिर उससे भी बुरा, or just messed up, या फिर एकदम गड़बड़ी में, or how much of your life have you seen change and transform from the day you met him? और जब आप उससे मुलाकात करते हैं आप देखते हैं आपका जीवन कितना बदल जाता है। Admit it that nothing much has changed and ask him to change you and transform you. और उसको कहिए प्रभु मुझे और बदलना है, उसको बताइए क्या बदलना है, और प्रभु आपको बदलेंगे। He is a good father. और वो बहुत अच्छे He पिता takes हैं। our bad and makes good come out of it. वो हमारा खराबपन ले लेते हैं और उस खराबपन में से आपकी अच्छाई निकालते हैं। If he did it for Rahab, he can do it for us. अगर उसने रेहब के लिए किया वो आपके लिए भी करेंगे। All we need to say is, transform me, Lord. और आपको करना क्या है? सिर्फ परमेश्वर Help को me इतना कहना है, change. परमेश्वर को इतना कहना है, प्रभु मुझे बदल और मुझे बदलने में मदद कर। Repent and ask for forgiveness. This is our daily life, to repent and ask for forgiveness. पश्चाताप करे और परमेश्वर से माफी मांगे हर रोज। You know, I speak to you today आज मैं आपसे कहती हूँ knowing there's so much that needs to change in my own life. कि मेरे खुद के जीवन में बहुत कुछ बदलना बाकी है, There's so much I have to learn about faith. और कितना कुछ मुझे खुद को विश्वास के बारे में जानना है। I'm still learning. मैं खुद और जान रही हूँ।
and we are all being transformed. और हम में से हर एक बदलता जा रहा है. It might take the rest of my life, अगर मैं अपनी जो आगे की जिंदगी उसको ले लूं, but if we include him in our equation of how we live life, it will be better. और उसमें मैं परमेश्वर को लेकर आऊं तो वो बेहतर है. One day we will be like him. One day we will be like him. It is written. और हम एक दिन उनके जैसे हो जाएंगे क्योंकि ये लिखा है. I remember asking Michael Eaton this when I was younger. I said, how can we be like him, Michael? We are such horrible sinners. और आंटी बताती है कि माइकल ईटन से जब उन्होंने पूछा कि हम तो एकदम गए गुजरे बेकार है, हम कैसे परमेश्वर के जैसे हो जाएंगे. And I want to tell you what he said to me. He said, Des, we are getting there. We are getting there. और उन्होंने आंटी रेस से ये कहा, हम और करीब उसके पहुंचते जा रहे हैं. Thank you.